Hello students, welcome back with a course of class 8 computers. This is Vaishali Nigam Gupta. To continue with the chapter, this is video number 3. To continue with the chapter, let's start with the next content, that is need for networking. I hope that you have saw all last two videos, which was about types of networks and the introduction of network. Now this is like you will learn about what are the hardware requirements of the networking, software requirements of the networking, what are the topologies and different things about the network. So let's start with the network now. This need for networking, हमें networking की ज़रूरत क्यों पड़ती है? Why we need the networking? The need for networking lies mainly to break the barriers of distance, time and cost. Yes, it is very important. This line is really very important, which means हम नेटवर्क के थ्रू डिस्टेंस के बैरियर्स को तोड़ सकते हैं, टाइम के बैरियर्स को तोड़ सकते हैं, हम कॉस्ट के बैरियर्स को तोड़ सकते हैं. अगर मुझे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, किसी से भी मिलना है, कोई डेटा शेयर करना है, तो आई नीड नॉट टू गो देयर. ओके, सो एक मैसेज, एक क्लिक में हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच आई वांट टू शेयर टू माय पेरेंट्स, आई वांट टू शेयर टू माय रिलेटिव्स, माय सिस्टर, आई कैन सेंड इट इन अ click. I can talk to them, I can see them in the video calling. So everything, this is called networking, which is breaking the barriers of distance. मैं कहीं भी किसी भी कंट्री में बैठ के अपनी मम्मा पापा कहीं से भी किसी से भी बात कर सकती हूँ विद वेरी मिनिमल कॉस्ट, वेरी मिनिमल कॉस्ट. ठीक है, अगर आप फ्लाइट लेकर इंडिया से सिंगापुर जाएंगे तो इट कॉस्ट अ लॉट. लाइक इफ़ यू कैन डू अ वीडियो कॉल फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया, आप डेली वीडियो कॉल करो, आप 24/7 वीडियो कॉल करके अपनी मम्मी पापा के पास रह सकते हो, उनसे बात कर सकते हो. ओके, सो this is quite an basic example of networking. This is because the communications via computers can be distant at any distance, can be covered in very short amount of time and very cost effective manner. Cost effective है और बहुत short period of time में आप कहीं भी किसी के पास तक पहुंच सकते हैं. In our daily life we come across with different types of network. Let us understand this concept through examples. Network of roads. Example: network of roads, railways, lines, canals, etc. Communication network of telephone system, which enable us to talk to anyone, anywhere, at any time. टेलीफोन के थ्रू, स्मार्टफोन्स के थ्रू हम कभी भी किसी भी टाइम पे किसी से भी बात कर सकते हैं. दिस इज एन एडवांटेज ऑफ नेटवर्क. ओके, नेटवर्क ऑफ बैंक्स, ATMs, रेडियो, टेलीविजन नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट, प्रोग्राम लाइव अक्रॉस कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स. दिस इज ऑल नेटवर्क. दिस इज ह्यूज नेटवर्क. Okay, you are living in a network India, I should say, in a network world. Without network there is nothing. आप जो टीवी में प्रोग्राम्स देख रहे हैं, लैपटॉप, यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हैं, अपना स्मार्टफोन एक्सेस कर पा रहे हैं, सब कुछ इज़ वर्किंग ऑन दी इंटरनेट. ATM से जाके पैसा निकाल पा रहे हैं, बैंक जा पा रहे हैं, बैंक को मोबाइल से एक्सेस कर पा रहे हैं, वो सब और सब सिर्फ आप एक ही वजह से कर पा रहे हैं. दैट इज़ अ ह्यूज नेटवर्क. Okay, let's move to the next slide. Based on how they are LAN setups, okay, this slide was dropped off on that particular types of LAN slide, so I have added here. I can explain you here. Based on how they are set up, LANs, local area networks, further can divided into two categories. Peer-to-peer network. These are two types of different LANs. Okay, LAN is local area network. तो ये दो अलग अलग टाइप के छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क से अलग अलग इंट्रोडक्शन. सो आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस यू peer to peer networks, client server networks. I found it in a book. And in a peer to peer network, all computers are considered to be equal as they have the same ability to use the network resources. Its main advantages are allow sharing of software, hardware resources. These are easy to install and are economical. Okay, peer मतलब क्या होता है? दोस्त. peer मतलब होता है दोस्त. तो peer to peer network का क्या मतलब? हर एक दोस्त, अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप अपने हर एक फ्रेंड को, अगर आपका 3 फ्रेंड्स का ग्रुप है या 4 फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो अगर वो बेस्ट फ्रेंड्स का ग्रुप है तो आप चारों बेस्ट फ्रेंड्स को इक्वल ही ट्रीट करोगे. तो यहाँ पे भी जो ये पीयर्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, इक्वली ही ट्रीट होते हैं. दे हैव ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल राइट्स. ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल राइट्स. फाइन. सो
you can share information, hardware resources, software resources through one computer to another. But there is another network form that is called client server network. एक तो हो गया स्कूल की क्लास जिसमें दोस्त हैं सारे क्लास में, ठीक है, और हम क्लास वन एक दोस्त से दूसरे दोस्त, दूसरे दोस्त से तीसरे दोस्त, तीसरे दोस्त से चौथे दोस्त के पास जा रहे हैं, दैट इज पीयर टू पीयर नेटवर्क, दोस्त से दोस्त का नेटवर्क। एक है क्लाइंट टू सर्वर नेटवर्क, एक है टीचर और स्टूडेंट्स का नेटवर्क, टीचर एंड स्टूडेंट का नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हैज अ लार्ज सेंट्रल कंप्यूटर कॉल्ड सर्वर and workstation computers called clients. The main advantage of this type of network are ensures high level of security of data, allows easy backup of files. यहाँ क्या होता है, एक बॉस है, यहाँ क्या है, एक बॉस है और उससे जुड़े बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, एक टीचर है और उससे जुड़े बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, राइट? गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस नेटवर्क क्रिएट्स टू इनेबल अ सिक्योरिटी। ये जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स होते हैं ये ही मेन जो जिसपे हमारी नेटवर्किंग वर्क करती है, ये क्लाइंट और सर्वर नेटवर्क पे ही वर्क करती है, क्योंकि इसमें हमारे डेटा की सिक्योरिटी रहती है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में सब हर कंप्यूटर को इक्वल राइट्स है, तो ना तो कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट है तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ए फाइल एक से डिलीट हुई तो सबसे डिलीट हो जाएगी, अगर सब में फाइल है तो सब में फाइल है। बट हेयर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है, सर्वर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोड ऑफ दैट नेटवर्क, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क स्टेशन ऑफ दैट नेटवर्क, मतलब ये कह लो वो स्कूल का प्रिंसिपल है, ओके, एंड उस सर्वर पे सारे क्लाइंट्स काम करेंगे, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे एडमिन डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी हो, ओके। सो क्लाइंट सर्वर मॉडल, यहाँ देखिए सर्वर बीच में है और उसके बाद अलग अलग क्लाइंट्स उससे कनेक्टेड है, फाइन। Networking hardware requirements. Networking hardware requirements. To connect the computers in a network, various types of hardware components are needed depending on the type of network. अब भैया नेटवर्क है, नेटवर्क चल रहा है, आपके फ़ोन में नेटवर्क चल रहा है, आपके ब्लूटूथ डिवाइस में नेटवर्क चल रहा है, आपके लैपटॉप में चल रहा है, आपके डेस्कटॉप पे चल रहा है, तो ये कैसे चल रहा है? इसमें कुछ हार्डवेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती होगी, कुछ सॉफ्टवेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती होगी, तब सब कुछ असेंबल करके ही तो हम नेटवर्क को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हार्डवेयर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हम एक नेटवर्क को सेट कर पा रहे हैं अपने घर पे? आप अपने घर में अगर वाईफाई लगवा रहे हैं तो उसमें क्या लगवाते हैं आप, राइट? तो टू कनेक्ट, तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, नाउ वी विल रीड दैट। To connect the computers in a network, various types of hardware components are needed depending upon the types of network. नेटवर्क किस टाइप का है, लैन है, वैन है, मैन है या पैन है, घर का कैसा है वो उस पर डिपेंड करता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये निक कार्ड हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप में इंस्टॉल्ड रहता है, ओके, ये हमारे स्मार्टफोन्स में भी रहता है, ऑल्सो नोन एज लैन कार्ड और ईथरनेट कार्ड। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द नेटवर्किंग, इट अलाउज द कंप्यूटर टू पार्टिसिपेट इन द नेटवर्क। इसी डिवाइस की वजह से आपके फ़ोन में नेटवर्क आते हैं, इसी डिवाइस की वजह से आपके लैपटॉप में नेटवर्क आते हैं, इसी डिवाइस की वजह से आपके डेस्कटॉप में नेटवर्क आते हैं, इसी डिवाइस की वजह से आपके टैबलेट में नेटवर्क आते हैं, ओके, बिकॉज अगर ये डिवाइस कनेक्टेड नहीं होगी तो नो नेटवर्क विल बी कैच्ड बाय दैट डिवाइस। तो दिस डिवाइस अलाउज यू टू कलेक्ट नेटवर्क फ्रॉम द टावर्स नियर बाय यू, ओके। You can participate in the network. Information from the computers is transmitted through NIC connected, located in the motherboard of the CPU. किसमें connected रहता है? आपके CPU के motherboard में NIC की चिप जो होती है वो कनेक्ट कर दी जाती है, ओके। ये देखिए अलग अलग फॉर्म्स के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स हैं। Transmission media, this is one of the hardware device, hardware requirement for the setting up of the networking. Transmission media carries the data signals from one computer to another. For example, coaxial cable, twisted pair cable, fiber optic cable और wireless transmission. What is transmission? Transmission का क्या मतलब होता है? Transmission का मतलब the things which is required to transfer your data. जो चीज़ आपके डेटा को वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफ़र कर रही है उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया, जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसमिशन, जैसे ट्रांसपोर्ट, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो किसके थ्रू? कार, बस, स्कूटी, दे आर ट्रांसपोर्ट मीडियम to carry people. Similarly, transmission media, these cables are used to take over the data from one place to drop the data at the second place. Okay, so this is happened through the cables. The data signals travels through the cables from one computer to another computer. For example, the coaxial cable, twisted pair cable, fiber optic cable or wireless transmissions. Now, hub.
It is a central hardware device that manages the flow of information among the computers and devices connected to it. The rate of flow of information is linked to the speed backed up by the switch and the devices. Hub क्या है? एक सेंट्रल हार्डवेयर डिवाइस जिससे प्रिंटर भी कनेक्टेड है, जिससे आपका सिस्टम भी कनेक्टेड है, जिससे आपका लैपटॉप भी कनेक्टेड है, टैबलेट भी कनेक्टेड है, और सारे डिवाइसेस कनेक्शंस किससे ले रही हैं? एक हब से. इट्स अ सेंट्रल हार्डवेयर डिवाइस दैट मैनेजेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. उस पर्टिकुलर हब से ही हर जगह इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है. ओके जो फ्लो ऑफ डेटा है, फ्लो ऑफ डेटा किस पे डिपेंड करता है? द स्पीड, द नेट स्पीड. नेट की स्पीड जो Mbps में आपके कनेक्शन में अवेलेबल होगी, उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा ट्रैवल करेगा फ्रॉम वन डिवाइस टू दी अनदर थ्रू हब. व्हाट इज़ राउटर? राउटर मैं आपको आगे वाली कमिंग स्लाइड में एक्सप्लेन करती हूँ. Connectors. A connector is a device that joins two computers or networks together. For example, RJ45 is a 8-wire connector used to connect computers on LAN, especially Ethernets. Okay, ये तो आपने देखा होगा. आपको लैपटॉप, जब आप इंटरनेट को अपने डिवाइस या डेस्कटॉप से कनेक्ट करते होंगे, तब इस टाइप का प्लगइन आप यूज़ करते होंगे अपने लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए. अगर आप वायर्ड कर रहे हैं, अगर आप वायरलेस कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ वाईफाई कनेक्टर. अगर आप वायर्ड कर रहे हैं तो वायर्ड कनेक्टर्स ये जो होते हैं, ये क्या करते हैं? आपको मोडेम को, आपके स्विच को आपके लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे. ओके, दीज आर कॉल्ड एज कनेक्टर्स. कनेक्टर्स का एग्जांपल दिया हुआ है RJ45. इसके अंदर 8 वायर्स एक साथ सिमुलेट किए जाते हैं फॉर द फ्लो ऑफ डेटा. ओके, इट इज़ यूज्ड इन LAN कनेक्शंस, स्पेशली ईथरनेट कनेक्शंस.